everyone, my name is Ananya, and you're here watching this video. You're probably thinking of starting content creation in 2026, or you might have already started, and you're feeling stuck just like me. Where to start, how to find your perfect niche, how to charge brands, what is whitelisting, what is ads, how to create videos, how to edit them, what is the best time to post, what type of collaborations are there, how to charge brands, what are the payment deadlines, how do you get the payments. So I honestly wished back in the day when I started, I had someone like this who would tell me every single thing in one single video, and I don't have to hop on 10 different videos to find exactly what I'm looking for. So here I am creating this full guide. I think this video, I'm not going to keep it very long, and you're going to learn everything about content creation that I wish I knew when I was starting out. And you will learn so many things along the way. I can't probably tell you every single thing. I might miss out on a lot of things, but trust me, it's a process. And honestly, this industry is not all glam and money and brand events and brand trips. No, it's not all of that. You will have a lot of phases where you will feel like you want to give up because it's not working out for you. But here's where I come in. I'll tell you what exactly you need to do and how to stay consistent. From the past 1 to 1.5 years, I was actually doing a full-time PGDM program, and I was doing full-time content creation as well. Yes, it did affect my engagement in the starting, it did affect a lot of things, but somehow I learned how to be consistent on both the places and how to show up even when I was running out of sleep. So, let me tell you a full guide of how to start content creation in 2026. So, let's get started. Firstly, understanding brand collaborations. Let me tell you, सिर्फ दो टाइप के collaborations होते हैं, barter and paid. बाकी everything is bullshit. Let me repeat that again. Everything else is bullshit. बार्टर में क्या होता है, ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट्स भेजता है, आपको उन प्रोडक्ट्स पर वीडियो बनानी होती है एंड आपको पोस्ट करना होता है ना. बार्टर में कुछ कुछ ब्रांड्स बोलते हैं कि आप बिना अप्रूव करवाए अपनी वीडियो डाल सकते हो, बट कुछ कुछ होते हैं जिसमें आपको अप्रूव करवा के ही वीडियो पोस्ट करनी होती है. सो मेक श्योर दैट यू रीड द ब्रीफ प्रॉपरली जो कि ब्रांड ने भेजा है, उसमें अप्रूवल नेसेसरी है या नहीं है. नहीं लिखा है तो आप एक बार पूछ लो. बट क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग इफ यू पोस्ट विदाउट देयर अप्रूवल. लाइक इतना कुछ मेजर नहीं होगा, बट दे विल आस्क यू टू टेक डाउन द वीडियो एंड पोस्ट इट अगेन. तो उसमें क्या होता है, आपकी इंगेजमेंट खराब होती है, बिकॉज आधे फॉलोअर्स ने देख चुका होता है तो वो सिर्फ लाइक कर देते हैं, बाद में देखते नहीं है. एंड जब व्यूज नहीं आते हैं, उसमें रीच नहीं आती है, तो ऑब्वियसली वो आपकी वीडियो डाउन कर देती है. सो दैट्स ऑन यू. तो आपको ये झेलना पड़ेगा. एंड बाटा कोलैबोरेशंस में कोई भी कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, आपको सिर्फ ब्रांड्स प्रोडक्ट्स भेजेगा. दैट्स इट. जैसे ही आप वीडियो पोस्ट करते हो, दैट कोलैबोरेशन कम्स टू एन एंड. देन पेड कोलैबोरेशन में ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट्स भी भेजते हैं और वो आपको पे भी करते हैं. नाउ दैट नंबर डिपेंड्स ऑन एंगेजमेंट एंड रीच, वी विल टॉक अबाउट लेटर इन द वीडियो. बट अभी के लिए उसमें आपको कैश मिलता है जितना भी आप चार्ज करते हो. पहले वीडियो अप्रूव करवाते हो, अप्रूव हो जाती है, कोई चेंजेस होते हैं, आपको वो करना होता है. और एक लिमिटेड नंबर ऑफ चेंजेस ही होते हैं जो कि ब्रांड ने आपको ब्रीफ में लिखे होते हैं. नहीं लिखे हैं तो आप उनसे बोल दो कि मैं सिर्फ 2 या 3 चेंजेस ही करके भेजूंगा वीडियो में, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा. तो ब्रांड आपको उस हिसाब से आपकी वीडियोस पे चेंजेस बताता है. एक ही बार में वो 10 चेंजेस अगर बता देगा तो दैट इज़ गुड, कि आपको बार बार नहीं रीशूट करना पड़ेगा. देन अगर वीडियो अप्रूव हो जाती है, यू अपलोड इट, ब्रांड ने मांगा है तो आपको पेड पार्टनरशिप ऐड कोड देना पड़ेगा. अगर वो आपकी वीडियो पे एड्स चला रहे हैं तभी, अगर आपको वो पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है, तभी सिर्फ आप उनको ऐड कोड भेजोगे, वरना नहीं भेजोगे. ओके. सो ये हो गया आपका barter and paid collaboration. Now the types of collaborations that are totally bullshit. Now firstly, brands that are asking you to pay for the shipping. Brands that are asking you to buy their products and they will give you a discount. बाकी affiliate commission based collaborations, वो कोई collaboration नहीं होता है. उसमें brands आपको सिर्फ उतना ही पे करता है जितना आप उनके product sell करोगे through your affiliate link और coupon code और anything. वो कोई collaboration नहीं होता है. उसमें आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ जाता है कि आपको इस प्रोडक्ट की रील 10 बार डालनी पड़ेगी या 50 बार डालनी पड़ेगी टू एक्चुअली गेट मनी आउट ऑफ इट. So that is not so honestly that's a bullshit collaboration, and you're only doing it just to get products at a discount and you're not actually trying to become a creator. उसमें ये फील होता है. देन एक्सपोजर कोलैबोरेशन, जिसमें वो आपको बोलते हैं कि आप हमारे साथ फ्री में काम कर लो और आपको एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि हम आपकी रील्स पे एड्स चलाएंगे. दैट इज सो बुलशिट. अगर आपके ब्रांड,
फर्स्ट ऑफ ऑल सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी ब्रांड आपकी रील पे एड्स चला रहा है, उससे आपकी एंगेजमेंट थोड़ी सी डाउन होती है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी पेइंग मनी टू मेटा टू बूस्ट योर वीडियोस। तो इट्स लाइक द सेम कि आप अपनी वीडियोस पे एड रन कर रहे हो टू गेन मोर रीच। तो अगली बार वो आप जब अपनी वीडियो भी पोस्ट करोगे, देन ऑल्सो इट विल एक्सपेक्ट द सेम थिंग, मनी फ्रॉम यू। एंड तो इसमें आपका थोड़ा सा लॉस होता है, आपकी थोड़ी सी इंगेजमेंट कम होती है, एंड ब्रांड को ही सिर्फ फायदा होता है। सो इसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई विजिबिलिटी एज सच नहीं मिलेगी। मुझे तो आज तक एज सच कोई विजिबिलिटी नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स रनिंग एड्स ऑन माय पेज। मतलब हाँ, थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी मिलती है, बट नोबडी एक्चुअली फॉलोज यू फ्रॉम दोज एड की रील्स। तो आपको कोई कोलाबोरेशन नहीं मिलेगा या इतनी कोई खास इंगेजमेंट नहीं आ जाएगी। सो इट्स नॉट एन एक्सपोजर फॉर यू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई नो दिस शेड। मेरे जो एड्स थे वो बहुत टाइम से चल रहे हैं। सो मेरे एड्स बेवकूफ ने चलाए हैं, सोल स्टोर ने चलाए हैं, देन पिलग्रिम ने चलाए हैं, बहुत सारे एड्स। मतलब मेरी मॉम मेरे एड्स कैंडी क्रश खेलते टाइम देखती थी, लाइक इतने नंबर ऑफ एड्स चलाए उन्होंने मेरी वीडियो पे। एंड आई हैव ब्रांड एड्स रनिंग ऑन एक्ोलॉजिका, बी ब्लंट, मामा अर्थ। सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। And honestly, simple sa funda hai, if a brand is reaching out to you, they should either give you the products for free because they want the visibility, or they should pay you. दे शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट यू कि हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, आप बस हमारे प्रोडक्ट्स खरीद लो। डिस्काउंट देने में उनका कुछ नहीं जा रहा है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी चार्जिंग मोर देन दी एमआरपी। तो वो अपनी कॉस्ट तो निकाल ही ले रहे हैं ना आपको प्रोडक्ट सेल करके, इवन ऑन अ डिस्काउंट। वो अपना प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। दैट्स द गेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। यू आर नॉट गेटिंग अ गुड डील आउट ऑफ इट। सो यार रिमेंबर कि इस टाइप के कोलैबोरेशंस कभी नहीं करने हैं। देन the second point is finding your niche. Oh my god, this is so important, and you cannot be everything to everyone. Remember that, okay? You need to find a specific niche that you want to work towards. So niche क्या होती है? A thing जिसकी वजह से लोग आपके पेज पर आ रहे हैं। Now what can be that thing? Anything that you excel in. Your fashion skills, your makeup skills, your organizing skills. Even an organizing skill sells nowadays. What you're good at, आप sports में अच्छे हो, आप gym में अच्छे हो, you what value can you provide to your audience? What is that one thing that you actually excel in? आपका aesthetic बहुत अच्छा है, आप decor बहुत अच्छा करते हो, आप चीजें बहुत अच्छी बनाते हो, आप DIYs बहुत अच्छे करते हो। There are n number of skills that you excel in. Now अगर आपको 10 चीजें पसंद है, आप उसमें से एक या दो चीज निकालो जिसमें यू वांट टू मेक अ वीडियो अबाउट। बिकॉज आपको 10 चीजें पसंद है, बट आपकी ऑडियंस सारी चीजें नहीं देखना चाहती है। सो व्हाट इज दैट 1, 2 और 3 थिंग्स दैट यू आर रियली ग्रेट एट, जो कि एक दूसरे से लिंक करती हैं? जैसे फैशन, मेकअप एंड ब्यूटी, ये तीनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। अगर आप DIY में अच्छे हो, आप क्राफ्ट के आइटम्स बना सकते हो, आप अपनी प्लेसेस को डेकोरेट करते हुए वीडियोस बना सकते हो, और आप एक दो चीजें और कर सकते हो। सॉरी, sorry guys. My eyelash is literally poking. Fuck. Anyways, so there are a lot of things that you excel at. आप सारी चीजों पे वीडियोस नहीं बनाओगे। Find something that you're really good at, उन चीजों को कंबाइन करो, उसके ऊपर वीडियोस डालना पोस्ट करो। सो ब्रांड्स को लगेगा कि हाँ, हम इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग वैल्यू ऑफ वन काइंड टू देयर ऑडियंस। इनकी ऑडियंस इनको सिर्फ इस चीज की वजह से फॉलो कर रहे हैं कि आपका DIY का सामान देखना है। अगर आप DIY की वीडियोस डाल लो, तो एक DIY या एक आर्ट एंड क्राफ्ट ब्रांड ही आपको रीच आउट करके बोलेगा कि ना हमारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करो। बट अगर आप सारी चीजों पे वीडियो बना रहे हो, ब्रांड डज नॉट नो कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। आर दे इंटरेस्टेड इन ब्यूटी, आर दे इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, आर दे इंटरेस्टेड इन डेकोर? सो सिर्फ आपकी ऑडियंस ही कंफ्यूज नहीं हो रही है, ब्रांड्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको प्रमोट क्या करना है, व्हाट यू आर एक्चुअली गुड एट। सो कीप इट लिमिटेड टू 1 or 2 थिंग्स। नाउ दैट इज फाइंडिंग योर नीश। जो भी आप एक्सेल करते हो, उसके आप वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको बाटा कोलैबोरेशंस आना स्टार्ट होंगे। इट्स गुड कि आप पहले शुरू में बाटा कोलैबोरेशंस एक्सेप्ट करो, आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करो, आप अपना वर्क और इंप्रूव करो और जनरेट करो, ताकि ब्रांड्स को दिखे कि हाँ, इसने बहुत बार काम किया है ब्रांड्स के साथ, दे आर ट्रस्टवर्दी, दे वर्क ऑन टाइम, इनका काम भी अच्छा है जो इन्होंने ब्रांड कोलैबोरेशंस पे किया है। सो उसके बाद आपको पेड कोलैबोरेशंस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। नाउ दैट कैन इवन बी आफ्टर 1 or 2 वीडियोस, और दैट कैन बी आफ्टर 30 वीडियोस। सो इट ऑल डिपेंड्स कि यार आपकी वीडियोस कितनी वायरल जाती हैं, आपका काम कितना अच्छा है, और आपकी कितना लक है एल्गोरिथम के साथ।
तो उसमें ये हो जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू माई थर्ड पॉइंट, हॉप ऑन ट्रेंड्स एंड ऑनेस्टली ट्राई मेकिंग देम योर्स. तो आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली है. नाउ आपको जो भी ट्रेंड पे फॉलो अप करना है, आप उस पे अपनी नीश के अकॉर्डिंग ही कंटेंट बनाओगे. नाउ जैसे अभी बहुत चल रहा है लेट मी री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, उसमें आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग अपना टाइटल्स एंड ऑल ऐड कर सकते हो. यू हैव 2025 रीकैप, यू हैव ऑल ऑफ दोज जिसमें वो व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल चल रही होती है एंड देन पीपल स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग्स जो कि ऑडियो कॉल पे मैनेजर उनका या उनका कोई बॉस बता रहा होता है. अ लॉट ऑफ पीपल डिड इट सो गुड कंसिडरिंग कि उन्होंने अपनी नीश के अकॉर्डिंग किया था. सो दैट वाज ग्रेट. यू कैन हॉप ऑन ऑल ऑफ दीज ट्रेंड्स एंड यू कैन मेक अ गुड विजिबिलिटी फॉर योर सेल्फ. आप बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो. आपने अगर वेट लॉस किया या आपने फिटनेस जर्नी किया, आप अपना उसका ट्रांसफॉर्मेशन डाल सकते हो. डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द ट्रेंड्स, ट्राई टू ऐड योर ओन पर्सनालिटी, योर ओन ह्यूमर. दैट इज हाउ यू गेन विजिबिलिटी इन 2026. एंड ऑनेस्टली यार, मैं तो बोलूंगी 2026 में ग्रो करना है तो बी अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, be a little dramatic, be a little, don't be drama free, I'm saying. Be a little dramatic, be controversial. Why do you think Rebel Kid is growing so much? Because she's controversial all the fucking time, and that is how people stand out in the community. Because you're safe to sub play kar rahe hain, but what's different about you? Are you controversial? Are you dramatic? Look, Big Boss क्यों देखते हैं, लोग Splitsvilla क्यों देखते हैं? Because they're all very controversial and dramatic. That's what people like to see. Don't be drama free, don't create safe content, create a little dramatic controversial content so that people come in the comments and talk about it. They talk, some people will be against you, some people will be with you, but it's all okay. भाई अगर तुम अभी नहीं controversial होगे तो 10 साल के बाद तुम्हें कोई नहीं याद रखने वाला है. So put your thoughts out there. Sometimes आप जानबूझ के भी अपने thoughts उल्टे बोल सकते हो so that people come and engage with your content. Don't try to be right all the time. Make mistakes on purpose to actually grow. ठीक है. सो दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग. एक देयर इज अ इन्फ्लुएंसर कॉल्ड लाला, आई थिंक. I'll, if I can find her, I'll write her page name over here. I have not watched her content for a very long time, but for once I know that I will recognize her if I see her on a street, or if she randomly pops up even on my feed. मुझे पता है, मैं इसकी पूरी वीडियो देखती हूँ because she post such fake crazy story times, and actually everyone or a lot of people actually believe that it's true. She brings a lot of drama and a lot of controversial opinions in her feed. Maybe she is right, maybe she is delulu, we don't know, but it's working for her and it's actually getting her a lot of money. So what's bad in that, right? Okay, guys, I just got a little hungry, but we are back. And where was I? Okay, so I was talking about how you can hop on trends and make them yours. Now, coming on to my fourth point, which is how to get professional with brands. Now, when a brand's reached out to you for a paid collaboration, what you need to do firstly is confirm what kind of deliverables are they looking for. Is it a collab reel, non-collab reel? Will they be using it for ads, or is it for YouTube, integrated shorts, whatever? So either you can send them your rate card, which includes all of these things, or if they've already mentioned that they want one non-collab reel plus 30 days ad rights, तो आप उसका उनको कमर्शियल अपना बता सकते हो. नाउ एड राइट्स आप कैसे चार्ज करते हो? आपने जो कमर्शियल ब्रांड से चार्ज किया है, लेट्स से आपने 20,000 कमर्शियल ब्रांड को चार्ज किया है, तो आप उसके एड राइट्स 3,000 फॉर 7 to 10 डेज कर सकते हो. दैट कम्स डाउन टू 9,000 रुपीज फॉर 30 डेज एड राइट्स. तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नाउ अंडरस्टैंड how ad rights work. There are two types of ad rights. One is whitelisting and the other one is boosting. So whitelisting में क्या होता है ना कि brands आपके Instagram या Facebook पेज से ad चलाते हैं and it's a little bit more invasive. तो आपको brands को कुछ access देना पड़ता है जो कि वो लोग मांगते हैं, and then brands आपकी वीडियो पे ad चला सकते हैं. So whitelisting का you need to charge a little bit more than ad rights. और ad rights में क्या होता है कि brands अपने पेज से ये ad run करते हैं but they use your content. So that is ad rights, and उसमें अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे चार्ज कर सकते हो. Now when everything is done, आपका डिसाइड हो गया है, आपका कंफर्म हो गया कोलैबोरेशन, आस्क एवरीथिंग ऑन मेल. ये शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कंफर्मेशन मेल से कुछ नहीं होता है. कंफर्मेशन से कुछ नहीं होता है, बट आपको एक मेल चाहिए. यू नीड टू गेट अ प्रोफेशनल मेल. इफ यू डोंट हैव वन, क्रिएट अ प्रोफेशनल मेल. उसमें ब्रांड को मेंशन करना है कि डिलीवरेबल्स क्या क्या है, कमर्शियल्स क्या क्या है, आपको वीडियो कब देनी है, कितने रीशूट्स हो सकते हैं वीडियो में, पेमेंट टाइमलाइन क्या है. यू नीड टू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन राइटिंग ऑन मेल, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट्स लीगल एंड प्रोफेशनल.
professional. Now always track your collaborations. You can even use Excel, Google Sheets, or even a physical notebook if you don't like to use Excel. मुझे भी Excel चलाना नहीं पसंद है in terms of this. So I just write everything down because I usually work on my phone. I honestly tried keeping a track on Excel, but I failed. So I just switched to just writing everything down in my notebook in one place so that I have everything in writing. You can use Excel if you're convenient with it. You can write brand name, date of collaboration, देन द डिलिवरेबल्स दैट आर रिक्वायर्ड. उसके बाद आपको अमाउंट लिखना है, फिर पेमेंट की टाइमलाइन क्या है, एंड इफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड और नॉट, सो यू कैन इजीली कीप ट्रैक. 60 दिन के बाद हाउ विल यू रिमेंबर कि आपने 2 महीने पहले कौन सा कोलैबोरेशन किया था, उसका पेमेंट आया है या नहीं आया है. सो जस्ट कीप अ ट्रैक. देन, oh my god, this is such a great point. Using AI, use AI if you are a creator, but use it the right way. Nowadays, you have a lot of AI options. I love Claude AI for my scripting, for writing everything down. Whenever I'm going to shoot any kind of video, ये मुझे pointers दे देता है, and then I just need to see the pointers like I'm doing right now, and then talking about it. It's very easy. And honestly AI सबको यूज करना चाहिए. AI is not a bad thing, but you need to understand कि AI ना आइडियाज नहीं जनरेट करता है आपके लिए. आइडियाज आपको खुद जनरेट करने. AI सिर्फ आपके आइडियाज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इन अ बेटर लैंग्वेज, इन अ बेटर फ्लो, इन अ बेटर फ्रेम, बट आइडियाज नहीं जनरेट कर सकता है. आई ट्राइड, जब भी मैं एकदम हरी में होती हूँ, आई ट्राइड राइटिंग स्क्रिप्ट इन अ हरी, तो मैं AI से बोल देती हूँ आइडिया जनरेट करके दे दो. लाइक इट गिव्स मी सच फक्ड अप आइडियाज. आई एम लाइक ब्रो, ये सबको समझ में आ जाएगा कि इट्स एन एड रील, सो आई डोंट वांट दैट. जब मैं उसको बताती हूँ, इट गिव्स मी अनदर एड टाइप रील. सो ये बिल्कुल नहीं करना है. ये बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है फॉर योर ऑडियंस टू इवन वॉच कि आप बहुत ज्यादा एड्स ही कंटेंट कर रहे हो. सो आप आइडियाज जनरेट करो कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना चाहते हो. आप उस आइडिया को इन डिटेल अपने AI टूल को बताओ, एंड देन जस्ट कीप टेलिंग इट कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, एंड इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट विद अ फ्लो. आपको उस स्क्रिप्ट को ज्यादा चैटी बनाना है, ज्यादा कॉन्वर्सेशन बनाना है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना है, थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाना है. AI can just reframe your scripts, not give you good ideas that people have not seen. 10 लोग सेम चीज सर्च करेंगे तो क्या पता एक दो की स्क्रिप्ट्स भी सेम हो. So just don't do that in 2026 because your audience wants to see the real you and not the filtered you. Here are a few additional tips for you all. Firstly, you need to create batch content. Now, batch content में क्या होता है कि आप अपने B rolls लेते हो, like you are sitting somewhere, you are drinking a coffee, you are going out somewhere, you are taking the वीडियो ऑफ अ सीनरी. आप ये सारे कंटेंट पीसेस है जिसमें आप कुछ कर रहे हो या आप कोई नई प्लेस एक्सप्लोर कर रहे हो. यू नीड टू कीप ऑल ऑफ दीज वीडियोस सेव्ड बिकॉज ये हमेशा काम आती हैं. अगर आपको कोई स्टोरी टाइम डालना है 3 साल के बाद भी, देन भी ये वीडियोस काम आ सकती हैं. अगर आप कोई ट्रैवल कंटेंट बनाते हो तो ये वीडियोस आपकी हमेशा काम आती हैं. नाउ कमिंग ऑन टू माय सेकंड पॉइंट, स्टडी द एल्गोरिथम. आप अपने पोस्टिंग टाइम्स देखो कि आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कब ऑनलाइन आती है. It can be anywhere between 4 to 6 or 8 to 10 or even after that. Then engage with your community. In 2026, not only it is important to create authentic content, but it is also important to just communicate with your community on a regular basis. आप उनको अपडेट्स दो, लाइफ अपडेट्स दो. अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो या आप कोई खाना बना रहे हो, आपने कोई नई मील ट्राई की, आप कोई नई जगह गए हो, ऑडियंस लाइक टू कनेक्ट विद यू ओनली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट दे एंजॉय. आप के ड्रामा देख रहे हो, आप के ड्रामा के बारे में बात करो. आप कोई डेकोर पीस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसके बारे में बात करो कि ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. एंड पोल इंसर्ट करो. आपकी ऑडियंस को फील होगा दैट दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर बाइंग डिसीजन. सो जस्ट क्रिएट अ बॉन्ड विद योर ऑडियंस. एंड अगर आपकी ऑडियंस बन गई देन देयर इज नो गोइंग बैक. ओके, सॉरी अगेन, मेरे पार्सल्स आए थे. बट या, next up, we talked about how you can engage with your community. Now next is very important, which I did not understand in the beginning कि इसकी importance क्या है, but invest in at least basic good quality equipment like a tripod. Tripod बहुत ही ज़्यादा long lasting होते हैं if you actually invest in good quality ones. मैंने I started buying tripods in 2021 and 2026 तक मैंने सिर्फ 3 tripods change किए हैं. 2 with ring light and 1 without a ring light, the one that I'm using right now. So मैं artificial light में अभी बहुत टाइम के बाद शूट कर रही हूँ. I don't usually use lights, तो मेरे लिए ring light लेने का कोई मतलब नहीं था. But I have invested in this light that I'm using right now. Should I show it to you? Okay. So I invested in this light and you can see कि कितनी ज़्यादा light देती है मेरे face पे. This is, I guess this is the full mode, and then you can lower the brightness according to you. Then there are 3 modes.
This is warm white, this is white, and this is yellow. This is warm. Yeah. So I usually like to shoot in warm white, this one. And let me just show you the difference. So this is me without the light, and then this is me with the light. You can see how much difference it makes. And it's for only, I guess, 999 rupees and 900 rupees, somewhere in between. And ये मैंने last year ली थी. It's still working pretty good. And the battery life is amazing, by the way, and very portable. तो I will link it down below अगर आपको लेना हो. And मैं अपने tripod भी link कर दूंगी नीचे, with ring lights and without ring lights as well. Then you invest in basic editing apps. तो मैंने एक ऐप है VLLO. लास्ट ईयर मैंने VLLO ये एडिटिंग ऐप का अपग्रेडेड वर्जन लिया था. दैट कॉस्टेड मी अराउंड 3000 रुपीज फॉर अ ईयर. एंड दिस टाइम आई हैव टेकन VN का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन. इट्स सो ग्रेट. आपको अच्छे फॉन्ट्स मिलते हैं, आपको अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है, यू गेट बेटर sound effects, you get better stickers. And stickers के लिए you can always use the free Pinterest. Like that's one of the best things to use on the internet. Moving on to my next point, learn basic SEO. You learn how to use keywords the right way. अपनी वीडियोस में keywords कैसे लगाना है. Like अगर आपकी वीडियो है review of the Mars lipsticks, तो आपको उसमें कौन कौन से keywords डालने हैं, so that audience is able to find your content easily on YouTube. क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें लोगों ने मार्स का रिव्यू किया है. हाउ इज योर वीडियो गोइंग टू स्टैंड आउट अमंग दैट इज यूजिंग योर कीवर्ड्स. And the next point, diversify your platforms. You don't understand it now, but एक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने से आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी. अगर आपका फैशन क्रिएटर ब्यूटी पेज है, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब. शॉर्ट्स को मिस आउट मत करो. जो शॉर्ट्स होती हैं आपकी, वो आपको विजिबिलिटी और एंगेजमेंट गेन करने में हेल्प करती है. शॉर्ट्स देख के ही लोग आपके पेज पे आते हैं. आप ये सोचो कि एज एन ऑडियंस आप भी किसी की शॉर्ट्स देख के ही उनके पेज पे जाते हो, तो व्हाई नॉट जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ. क्योंकि शॉर्ट्स आप 10 सेकेंड्स की शॉर्ट्स डालो, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, जितनी भी आप डाल सकते हो, बिकॉज दे एक्चुअली कन्वर्ट योर रैंडम ऑडियंस इनटू एक्चुअल कम्युनिटी. On your tough days, just understand why you started doing it in the first place, because I could have just left content creation altogether because it was not working out for me for a long time. And I would have just started working at a corporate company, just a regular 9 to 5. But I knew that I am not someone who is made for 9 to 5, and I am always thinking about content creation even when I am at work. I obviously worked 2 jobs before actually started content creation. I started working at the age of 21. So I know what I'm talking about, okay? So I just know that 9 to 5 is not for me. I started content creation because I love creativity, I love fashion, and that is what I am willing to do. I'm willing to invest my time in creating content. I'm not willing to invest in 9 to 5. And yeah, I love creating content. I love being on the camera. I love shooting in new places, and I'm obsessed with new clothes and new makeup and just creating good content. So yeah, that's my wise, and that is why I started it. So remember your wise and fake it till you fucking make it, okay? Because again, I'm telling this to you again, but this is the topic for my next video. But universe is not in lack of anything. It's not कि वो 10 लोगों को इसे famous बनाएगा. You can be one of them if you just be in the right energy. Let me say that again. Shift your energy and everything else will shift with you. But yeah, that was about it. I think I've probably covered everything from A to Z, how to start content creation and how to navigate through it. But if you still have certain questions, you can just leave them in the comments down below. I'll probably make a next video on that as well. I'll see you guys next time. Till then.